Welcome students. Today we are here for another compound with 6 coordination numbers. Already in our earlier video we have studied about stereoisomerism in 4 coordination compounds. है ना? I will attach that link also with this video so that you can see video of 4 coordination compounds. Also in that video I have explained tricks to know geometrical as well as optical isomerism in 4 coordination compounds. So here we goes. Let's go little back. Already it is explained what is stereoisomerism. When in a space there is different arrangement of atoms or group. It is of two type. This we have studied, है ना? Now stereoisomerism is from geometrical isomerism as well as optical isomerism. In geometrical isomerism structural formula is different, whereas in optical isomerism only those compound which shows chirality or which do not possess plane of symmetry, those compound shows optical isomerism. Then also I told you that optical isomerism is of two types, dextro and levorotatory. Dextro turns the plane polarized light towards right side, whereas the levio rotates the light POP, plane polarized PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट. ये बेटा हम सब पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं. जस्ट वी आर गोइंग फॉर रिवीजन हेयर. फिर ये भी कहा था क्योंकि कंपाउंड्स कई सारे टाइप के होते हैं, फॉर द इजी टू स्टडी ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमने क्या किया, सारे कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है जो मोस्ट कॉमन हम पढ़ते हैं, है ना. वो है हमारे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड. 4 कोऑर्डिनेशन का नंबर मीन्स व्हेन द सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विथ 4 ligands, and here when the central atom is attached with 6 ligands. Therefore in 4 coordination number compound the structure is, and here it is tetrahedral or square planar structure, whereas in 6 coordination number the central atom is attached with 6 ligands, therefore the structure is a octahedral structure. ये हम आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 3 डायमेंशनली यदि आप इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे वो कैसे दिखाई देंगे, है ना. एंड ऑल्सो इन लास्ट अर्लियर वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स, है ना. Now today in this video we are studying 6 coordination number or octahedral structure. In these structures what happens to geometrical isomerism and optical isomerism. Let's see. The example here is in 6 coordination compound the example we are taking is Ma6. ये हम आपको बता चुके हैं. A एंड B आर अवर लिगैंड्स, है ना. ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है ये वीडियो. Ma6 वी आर टेकिंग हियर एग्जांपल. Ma6 के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे. दिस इज अवर मेटल, इट इज़ अटैच्ड विथ A one above the plane and one below the plane. See, 6 side it is, this metal is attached with 6. इसका कॉम्बिनेशन यदि हम देखते हैं, देखिए बेटा कॉम्बिनेशन इसका हर बार कैसा होगा, ऐसा A and again it will be your कॉम्बिनेशन. इसका कैसा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ligands, है ना. वन सेट. See, combination will be AA, then AA and AA. 1 2 3 4 5 and 6. This. तो ज्योमेट्रिक क्या इसका दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं.
No, this means here there is no geometrical isomerism. अब एक चीज़ और बताते हैं, यदि हम इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, सी इफ़ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट्स मिरर इमेज, मिरर इमेज हमको सेम ऐसी ही मिलेगी. हाउ द मिरर इमेज विल, सी द मिरर इमेज विल बी सेम. आप यदि इस कंपाउंड को उठाकर इस पर एज इट इज़ ऐसे रखेंगे, इट विल सुपर इम्पोज, है ना. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि जो कि सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करते हैं. या फिर हम एक तरीका और आपको बता सकते हैं, इसको कहीं से भी आप, यदि हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, सी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया. सी इफ़ वी आर ड्राइंग हेयर वन लाइन, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया. सो हेयर these many lines we can draw. कितनी? 1 2 3 4 POP are here. कितनी प्लेन पोलर, सॉरी कितनी POS है? POS मीन्स प्लेन ऑफ सिमिट्री. मीन्स इस कंपाउंड को एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री होती है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो हमारा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री है, तो ये कंपाउंड कैसा है? दिस कंपाउंड इज़ अवर ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो दिस कंपाउंड, दिस इज़ अवर एग्जाम्पल 1, दिस कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली inactive. Now I am telling you the trick to identify the geometrical isomerism and optical isomerism. See, trick for optical isomerism. Compounds having these sets AA, BB or AB combination of ligands will not show optical isomerism. Means यदि आपके पास इस तरह के सेट हैं, ये देखिए सेट AA, अभी हम और एग्जाम्पल लेंगे, दिस विल बी क्लियर. यदि कोई सा कंपाउंड इस तरह के कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है, देन दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. एक तरीका ये है. दूसरा, यदि उस कंपाउंड को आप किसी इमेजिनरी लाइन के थ्रू इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स प्लेन ऑफ सिमिट्री, देन दैट कंपाउंड ऑल्सो विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये हमको इतनी चीज़ें याद रखनी है. नाउ ट्रिक फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज, जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं किसके, इस तरह के, उतने ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे. इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. अभी सिर्फ आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है. पहला चीज़, ये कॉम्बिनेशन आपको देखना है. इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी मालूम पड़ जाएंगे. जितने पॉसिबल्स हम कॉम्बिनेशन बना सकेंगे लिगेंड्स के, उतने पॉसिबल हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेंगे. और यदि किसी भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में यदि ये वाला सेट मिल रहा है, तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. हमने एक एग्जांपल लिया Ma6, वेयर मेटल इज सराउंडेड बाय 6 वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना. दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं. व्हेन द मेटल इज सराउंडेड बाय 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स A and B, वेयर A is 5 in number and B is 1. टोटल लिगेंड्स हमारे 6 होने चाहिए एंड A and B is our लिगेंड. अब देखिए, या तो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, फिर हम POS चेक करें, कॉम्बिनेशन हम देखें, उसमें टाइम लगता है. तो क्यों ना हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जगह, देखिए ये कॉम्बिनेशन ही ये है ना. तो इट इज़ अ ट्रिक ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. देखिए अब इसके कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. A
AAAB, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और दूसरा इसका हम क्या बना सकते हैं, AB AA मीन्स दोनों ही सेम हो गए। कॉम्बिनेशन तो आपको यही मिलेगा ना, यदि आप इस B को यहाँ लिख देंगे या यहाँ लिख देंगे, कॉम्बिनेशन विल बी सेम। दिस मीन्स हेयर देयर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज 0। अब हम यदि ऑप्टिकली एक्टिविटी देखते हैं, देखिए वी आर हैविंग AB बोथ कॉम्बिनेशंस वी आर हैविंग हेयर, तो ऑप्टिकली आइसोमर्स कितने होंगे इसके, 0। दिस मीन्स दिस फॉर्मूला will show geometrical isomerism 0 figures, whereas optically isomerism will be also 0। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। नाउ नेक्स्ट अवर एग्जाम्पल इज MA4B2। अब देखिए इसमें हम कॉम्बिनेशंस भी ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले हम कंपाउंड बनाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर A4, A above the plane and below the plane we are having B। अब इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखो बेटा क्या हो गए। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है, दिस इज़ अवर वन कॉम्बिनेशन। हम दूसरा ड्रॉ कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। पहले हमने क्या किया, चारों लिगेंड्स ए सेम प्लेन में कर दी। अब हम क्या करते, ए, ये लो ए एंड ए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन देखिए इसका, देखिए इसका कॉम्बिनेशन। अब इसके हम सेट लिख लेते हैं। इसका सेट क्या होगा, वी आर राइटिंग इट सेट हियर, ए दिस इज वन सेट, देन ए एंड बी, दिस इज वन सेट। नाउ इन अनदर कंपाउंड, अनदर आइसोमर कैसा बनेगा, ए बी अनदर ए बी और हो गया एक हमारा ए। इसका हम एक आइसोमर और ड्रॉ करके देखते हैं। हमने एक तीसरा कंपाउंड लिखा है, इसके कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए इसका ए बी ए, देखिए पहले वाले कंपाउंड में और थर्ड कंपाउंड में क्या कोई अंतर है, नो, कॉम्बिनेशन इज सेम। तो हम स्ट्रक्चर में टाइम खर्च करें, इससे अच्छा हम ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर ले तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, इसीलिए हम ये कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करते हैं। अब देखिए दिस एंड दिस इज सेम, तो हमारा ये वाला आइसोमर नहीं है। सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स वी आर हैविंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2, ठीक है। अब हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देखते हैं, क्यों हम इस कॉम्बिनेशन को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। देखिए ज़रा, यदि हम इस कंपाउंड की या इस कॉम्बिनेशन की मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही हम इस कॉम्बिनेशन की भी एक मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। ये तो हमारा रिजेक्ट हो ही गया है, तो हम इन दोनों कंपाउंड्स की या इन दोनों सेट्स की मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या बन, नाउ सी द मिरर इमेज ऑफ दिस, हियर इज़ ए, हियर इज़ ए, हियर इज़ ए। इसको उठा के यदि आप इस पे रखेंगे इट विल सुपर इम्पोज। तो हमने क्या कहा था, ऐसा कंपाउंड जो कि सुपर इम्पोज हो जाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। या फिर हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, यदि कंपाउंड में POS प्लेन ऑफ सिमिट्री है वो भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पर देखिए आप कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इट विल बी डिवाइडेड, सी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे इट विल बी इंटू 2 हाफ, ऐसे ड्रॉ करेंगे इट विल बी इंटू 2 हाफ। दिस मीन्स दिस कॉम्बिनेशन ए बी दिस कॉम्बिनेशंस आर हेयर। हमने क्या कहा था आपसे, यदि ये कॉम्बिनेशन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए इस वाले कॉम्बिनेशन में ये प्रेजेंट है, दिस मीन्स दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना।
अब हम इस कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए ए बी, हमारा ए बी सेट प्रेजेंट है और ए भी प्रेजेंट है। दिस मीन्स this will be also optically inactive. Now see, हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल देखे, यदि हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ द optical as well as geometrical isomerism. I think this video will be very much helpful to you. In next video we will be meeting with some another important topic. Thank you for watching it.